Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 9th English Language and Literature. ये केंद्रीय विद्यालय का जो नया पैटर्न है उस पर बेस्ड सैम्पल पेपर है आपका। आप सभी जानते होंगे कि 10th क्लास में CBSE ने जो चेंजेस किए हैं अपने पेपर में, सेम वही चेंजेस KVS ने 9th के पेपर में और 12th के बेसिस पर 11th के पेपर में किए हैं। तो किस तरीके से पेपर आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन का मतलब कि मैं आपको कहीं ना कहीं जो आंसर्स हैं वो भी थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया जाएगा, बता दिए जाएंगे, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से आंसर्स आपको एग्जाम्स में लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग है आपका, ये पैसेज आपको रीड करना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देना, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी ही हो गई है। अब मैं बहुत क्विकली इसको रीड कर देती हूँ, इतना टाइम नहीं है कि पूरा समझाऊँ आपको, और उसके बाद क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। As a medical practitioner for last 20 years, I have realized that to cure any disease, one need either or both of the two important perspectives, namely knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom in medicine complement and supplement each other in a manner that is rarely seen in any other field. With advancement in last 50 years, availability of knowledge has made treatment easy and predictable, but unfortunately, this dependence on knowledge has also eroded our ability to effectively apply wisdom. एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अपनी कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा है कि जो फील्ड है हमारा मेडिसिन का, उसमें किस तरीके से नॉलेज तो आपको चाहिए लेकिन विजडम की भी ज़रूरत होती है। द करंट कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ रिवील्ड दिस हैंडीकैप इन मोर लीथल वे विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ द डिजीज, इट्स containment and predictability of spread and fatality. A large part of the prevention and treatment of COVID-19 is now based on wisdom. It is possible to conclude that countries which applied common wisdom has done particularly well in the control of pandemic, which compared to nations which have dependent on knowledge that was slow to come and which has been patchy. The United States of America and India are classic example where wisdom was thrown to the wind and citizen paid heavily. In the last 1 week, the buzz around COVID-19 vaccine has ignited hope. There is talk of closure and an end to the most devastating health catastrophe which the post-modern world has witnessed. Hope is necessary, but it can also be a tool of self-deception and thus need to be tempered with caution. I wish that the hope generated by the vaccine talk around COVID-19 should not prolong the agony of an already tormented humanity, which does need to see the vaccine in more light. Of the 250 odd vaccines which are currently under various stage of development या फिर evaluation, at last 3 have generated significant hope. The Moderna vaccine, the AstraZeneca vaccine and the Pfizer vaccine. Other than adverse effects, many questions have remained unanswered. How effective will these vaccines be in breaking the transmission of the disease? Historically, many disease vaccination models have failed to break disease transmission. For COVID-19, a break in transmission is more important than momentary immunity, which these vaccines are supposed to provide. How many does will be needed for acquiring immunity still in the realm of foggy knowledge. Gender variability in receiving vaccination are well known in our country. Boys generally have a higher vaccination coverage than girls, as reported by most surveys conducted across the country for childhood immunization. We don't know how the 189 million undernourished Indian will respond to COVID-19 vaccine. Okay. सो होपफुली आप एक बार रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। पेंडेमिक जो है आपकी, उसके किस तरीके से लोगों ने जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा एक फेलियर साबित हुआ उसके बारे में, और वैक्सीन जो है कितना वो इफेक्टिव रहेगी उसके बारे में जो आपके राइटर है थोड़े से अनश्योर दिख रहे हैं। अब क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके, द राइटर फील दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फील्ड आर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से लगते हैं इनको मेडिकल फील्ड के? आंसर होगा आपका ए, नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में विजडम भी होनी चाहिए। विजडम मीन्स थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपको रखनी है, मतलब बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए साथ साथ नॉलेज की आपकी। अगला क्वेश्चन, द राइटर इज, राइटर कौन है? ये एक प्रैक्टिशनर है, यानी कि वन हु प्रैक्टिस मेडिसिन, एक जो पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है इस टाइम मेडिसिन को। द करंट कोविड-19 पेंडेमिक हैज रिवील्ड दिस हैंडीकैप इन मोर लीथल वे
हियर अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैंडीकैप मीन्स, उसने कहा है कि कोविड-19 ने एक रिवील कर दिया कि हम किस तरीके से एक हैंडीकैप, एक लीथल वे में उसने ये बताया है, रिवील कर दिया। तो यहाँ पर हैंडीकैप का क्या मतलब है? तो हैंडीकैप मतलब है कि डिपेंडेंस ऑन नॉलेज एंड इग्नोरिंग विजडम, कि हम लोग सिर्फ नॉलेज पर ही डिपेंडेंट है जो हमें पता है पहले, और विजडम को, अपनी इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर रख रहे हैं। विच वर्ड शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट? कंटेनमेंट का सही मीनिंग क्या है? कीपिंग समथिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से किसी चीज़ को रोकना। कंटेनमेंट जोन भी आपने सुना होगा कोविड में काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर कंटेन करके रख दिया जाता है ताकि चीज़ फैले ना। मिस्टर विक्रम शर्मा इन्वाइटेड ओनली 20 गेस्ट टू हिज सन्स वेडिंग फंक्शन। 20 गेस्ट को उन्होंने बुलाया। ही मेड श्योर दैट हिज गेस्ट फॉलो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि सभी प्रिकॉशंस फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही शोज हिज, पैसेज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी क्या शो किया? उन्होंने अपनी विजडम यानी कि अपनी इंटेलिजेंस शो की है इस बात में। ये पैसेज वैसे मैं रीड नहीं करने वाली थी, मुझे लगा कि आप कर लोगे, लेकिन क्योंकि इस बार ऐसे पैसेजेस आने की या फिर ऐसे आपके जो एसेज हैं आने की, इस टॉपिक पर एक चीज़ तो आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, और वो क्रिएटिव राइटिंग में हो सकती है या फिर वो आपकी यहाँ पर हो सकता है एक पैराग्राफ की फॉर्म में पूछ लिया जाए। दैट इज़ वाई ये करा दिया गया है आपको। होप इज़ नेसेसरी, होप बहुत ज़रूरी है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ टूल ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड दस नीड टू बी टेम्पर्ड विद कॉशन। लेकिन ये सेल्फ डिसेप्शन भी आपको का एक टूल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा टेम्पर्ड करना पड़ेगा सावधानी से। तो यहाँ पर राइटर की टोन क्या है? राइटर यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, कुछ सो सजेस्टिंग टोन है उसकी। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय जेंडर वेरिएबिलिटी? जेंडर वेरिएबिलिटी से यहाँ पर क्या मतलब है इस कंटेक्स्ट में, पैसेज में? तो उन्होंने बताया भी है बाद में कि बॉयज़ जो है उनको वैक्सीनेशन कवरेज जो है वहाँ पर ज़्यादा है रादर देन गर्ल्स। तो ऑप्शन आपका सी सही है, बॉयज़ जनरली हैव हायर वैक्सीनेशन कवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का सही अप्रोप्रिएट टाइटल रहेगा वायरस एंड विजडम, क्योंकि कोविड के बारे में और विजडम के बारे में जो मेडिकल फील्ड में दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लोर किया है राइटर ने। अगला क्वेश्चन है आपका 9th, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज हाउ मेनी डोजेज विल बी नीडेड फॉर एक्वायरिंग इम्यूनिटी? कितनी डोजेज इम्यूनिटी के एक्वायर करने के लिए चाहिए होगी? स्टिल इन द रीम ऑफ फॉगी नॉलेज, ये अभी भी एक फॉगी नॉलेज है, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है। फॉगी नॉलेज का क्या मतलब है यहाँ पर? तो अ कंडीशन इन विच यू कैन नॉट डिसाइड, नहीं ये नहीं होगा। फॉगी वेदर, इसका होगा समथिंग विच इज एब्स्ट्रूस एंड हेजी, कुछ जो ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, अभी थोड़ा सा हेजीनेस हो उसमें, उसको फॉगी नॉलेज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है। द राइटर अनसर्टेन दैट, राइटर किस बारे में अनसर्टेन है? हाउ विल इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन? ऐसा उसने नहीं कहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कैसा रिस्पॉन्स करेगी। हाउ विल इंडियाज मैलन्यूट्रिश्ड पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड टू, ऐसा उसने लास्ट में कहा है। हाउ इफेक्टिव विल दीज वैक्सीनेशन इन ब्रेकिंग द ट्रांसफर ऑफ डिजीज, ये भी उसके लिए एक तरीके से अनसर्टेनिटी है कि कैसे ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो स्प्रेड है उसको रोकेगी, उस पर ब्रेक लगाएगी। एंड हाउ मेनी डोजेज विल नीड फॉर एक्वायरिंग इम्यूनिटी, ये भी अनसर्टेनिटी है ऑथर को। तो यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन बी सही है आपका, ये तीनों ही अनसर्टेनिटीज है। ओके, द राइटर ओपाइन दैट इंडिया एंड यूएसए कुड नॉट सक्सीड इन कंट्रोल कोविड केसेस बिकॉज, ऐसा लगता है राइटर को कि यूएसए और इंडिया जो है कोविड केसेस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसका क्या रीजन उन्होंने बताया? सो पीपल हैव डिस्कार्डेड देयर एबिलिटी टू डिसर्न और जज व्हाट इज ट्रू, राइट और लास्टिंग, ये मेन रीजन है कि लोग जज नहीं कर पाए। ऑप्शन आपका सी सही है, ना कि ह्यूज पॉपुलेशन पॉवर्टी की वजह से, जो कि यूएसए में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं पॉवर्टी की, पुअर की इम्यूनिटी एंड ऑल, ये सब फैक्टर्स नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच प्रोवर्ब एक्सप्रेसेस द बेस्ट आइडिया ऑफ दिस पैसेज? कौन सी प्रोवर्ब, एक कहावत है जो कि इस पैसेज को सही, मतलब इसका एक कंक्लूजन है, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर से अच्छा है प्रिवेंशन रखिए, आप सावधानी रखें। ओके, तो ये फर्स्ट पैसेज हो गया आपका। सेकंड जो पैसेज है आपका, इस बार ये आपने 10th का अगर सैम्पल पेपर देखा है उसमें भी आपको कुछ थोड़ा सा एक पैसेज आपका रिलेटेड टू ग्राफ्स, थोड़ा मैथ्स का या थोड़ा किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये ज्योग्राफी का कुछ बताया हुआ है, तो अगेन रीड कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। इन द पिक्चर बिलो यू कैन सी वेराइटी ऑफ मैप्स, यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ मैप्स दिखेंगे पिक्चर में, नीचे दिए हुए हैं। ये एक्चुअली पिक्चर आई नहीं होगी, ये मुझे लग रहा है कोई स्क्रीनशॉट डाला होगा इन्होंने मैप का, गूगल मैप का, तो वो पिक्चर दिखी नहीं है ढंग से, ग्लोब है और ये आपका इमेज 3 में मैप दिया हुआ है किसी सिटी का। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है?
Cartographers uses a variety of maps and usually define a map as an image usually of earth or a part of earth. अर्थ या पार्ट ऑफ अर्थ की एक इमेज. While a physical map focuses on geography of an area and covers aspects like river, lake, desert, volcanoes, mountains, etc. ये physical map शो करता है. Political map क्या शो करता है? Boundaries of countries, state, countries, district, etc. ये आप जानते होंगे, सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास का ही टॉपिक है. पॉलिटिकल मैप जिसमें कि बाउंड्रीज होती है, फिजिकल मैप जो कि फिजिकलिटी दिखाता है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंडिया की, ये पॉलिटिकल मैप है क्योंकि हर चीज़ की बाउंड्री आपको दिखाई हुई है, कहाँ से कौन सा ये शुरू है. यहाँ पर शिकागो है ना, यहाँ पर लॉस एंजलिस है, तो ये पॉलिटिकल मैप है. और इंडिया की अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपको बाउंड्रीज दिखाई, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल मैप. ओके, लेकिन जिसमें सिर्फ आपको माउंटेन्स, रिवर्स ये दिखाई जाए, बाउंड्रीज ना दिखाई जाए, उसको हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं. ओके, this is also known as reference map because people and students refer to them again and again as they have questions. जब भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स इसी मैप को रेफर करते हैं, इसलिए इनको रेफरेंस मैप भी कहा जाता है. इनफैक्ट नाउअडेज दे आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज. आजकल उनको वैरायटी ऑफ वेज में भी यूज किया जाता है. एंड कवर सेवरल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ranging from weather monitoring, satellite navigation, and even as mind map for better comprehension of complex studies. Okay, an archaeologist, a travel memoir writer, an antiquarian, and numismatist, and an academician all use map in multiple ways in various research work and studies. ये सभी जो है मैप को यूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क में. Professor Chris Fisher, an archaeologist from Colorado State University, said, "We are going to lose a significant amount of cultural patrimony as well as ecological patrimony, which can be monitored only with the help of map. Our world is witnessing sea change in cultural aspect and natural phenomenon and flora and fauna around us undeniably." ओके, इसमें कोई डिनाइल का वो नहीं है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको लूज कर रहे हैं. चलिए, पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, जितना भी आप समझ सके, लेकिन एक बार पैराग्राफ को पढ़ जरूर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप मत करिए. एक बार क्विकली रीड कर लीजिए, 1-2 लाइन भी आपको समझ में आएगी, दैट विल बी मोर देन इनफ. तो यहाँ पर आपको ग्राफ्स उसके बारे में बताया है. फिर नीचे आपको कुछ इमेजेस दी हुई है, ग्लोब, एक गूगल मैप है और एक एरिया का मैप दिया हुआ है. ये इंडिया का मैप दिया हुआ है. क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, एनी 10, आपको किसी भी 10 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. आई थिंक 12 क्वेश्चन होते हैं इसमें. द थर्ड इमेज इज ऑफ, तीसरी जो इमेज है ये वाली, थर्ड इमेज, सॉरी नॉट दिस इमेज थर्ड, ये कौन सा मैप है? ऑप्शंस हैं आपके, ए पॉलिटिकल मैप, टोपोग्राफिक मैप, फिजिकल मैप या फिर वेदर मैप. एक बार देख लेते हैं अच्छे से ये किस बारे में बता रहा है मैप. बाउंड्रीज तो यहाँ पर आपको दी ही हुई है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअली क्लियर नहीं है पिक्चर, थोड़ी सी शायद आपको क्लियर ना दिख रही. यहाँ पे शावर दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉर्म, रेन, फॉग, स्नो, आइस, कुछ ऐसे दिया हुआ है. और यहाँ पर आपको बताइए कि बारिश कहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है, मतलब कि एक वेदर मैप है. वेदर डिपार्टमेंट जो आपका हमारा होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने ये शो किया है कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कितना रेन, स्टॉर्म एंड ऑल, ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि वेरियस सिंबल्स के थ्रू, की को यूज करके. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, इट इज अ वेदर मैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सन इज इन क्लास 7, रवि का जो बेटा है वो 7 क्लास में है. ही वांट हिज सन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ही वेंट टू शॉप टू बाय अ मैप फॉर हिम, उसके लिए मैप लेने के लिए जाता है. विच वन यू एडवाइज टू बाय, कौन सा आप एडवाइस करेंगे उसको बाय करने के लिए? पॉलिटिकल मैप, गूगल मैप, फिजिकल मैप या फिर टोपोग्राफिक मैप? इंडिया की पूरी ज्योग्राफी समझने के लिए कहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल मैप वुड बी बेटर. ऑप्शन आपका ए सही होगा. नेक्स्ट, नचिकेत हैज रिसेंटली प्लान अ ट्रिप टू सम फेमस इंडियन स्टेट, कुछ फेमस इंडियन स्टेट की ट्रिप वो प्लान कर रहा है. हाउएवर ड्यू टू वेदर फोरकास्ट ऑफ इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन, वेदर फोरकास्ट ने कहा कि जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी सी अभी हार्श रहेगी, रिजिड रहेगी, कठोर रहेगी. ही गेट्स द एयर टिकट कैंसिल, उसने एयर टिकट कैंसिल कर दिया. एंड री प्लान हिज टूर, दोबारा से अपना टूर प्लान किया. दिस टाइम ही डिसाइड टू यूज हिज ओन कन्वीनियंस, उसने सोचा कि मैं अपने खुद के कन्वीनियंस से जाऊंगा अपनी गाड़ी से. राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप ही कैन यूज, बताइए कि कौन सा मैप वो यूज कर सकता है. वेदर मैप टू प्लेस ऑफ प्लेस ही वांट्स टू विजिट, वेदर मैप यूज करेगा. या फिर ऑप्शन बी द ग्लोब गिविंग ऑल डिटेल ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोब यूज कर सकता है, इसमें वर्ल्ड की सारी डिटेल्स हो. या फिर ग्लोब मैप, गूगल मैप वाइल ट्रैवलिंग ऑन हाईवेज, गूगल मैप डेफिनेटली ये आप भी करते होंगे. अ रिसोर्स मैप टू टेल हाउ क्रॉप मिनरल्स, दिस इज ऑफ नो यूज, वहाँ पर क्या क्रॉप्स है, क्या मिनरल्स है, क्या ओर्स है, ये पहुँचने के लिए वहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है. सो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं. ग्लोब अगर आप पूरी दुनिया का लेके चलोगे और आपको अब पूरी दुनिया तो आप घूम नहीं रहे हो, दूसरी कंट्री में आप जा नहीं रहे हो खुद की गाड़ी से, आप शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही जाते हो, तो यहाँ पर आपको ग्लोब का कोई यूज़ नहीं रहेगा. एक तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो वेदर मैप भी ले जा सकते हो वहाँ पर देखने के लिए कि कैसी कंडीशन वहाँ पर है. तो यानी कि अच्छा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहला और तीसरा. नेक्स्ट,
चूज दी ऑप्शन दैट इज या फिर आर लाइकली टू फाउंड ऑन वेदर मैप। वेदर मैप पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बैरोमेट्रिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, ऑल सभी चीजें देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका डी सही है। प्रेशर कितना है, कितना ह्यूमिडिटी कैसी है वहां पर। सेलेक्ट द एसेट दैट ह्यूमन बीइंग हैव इन फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पैट्रिमोनी। इकोलॉजिकल पैट्रिमोनी में हमारे पास क्या एसेट्स हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं फ्लोरा एंड फौना, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, मशीन्स, इकोसिस्टम एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, बोथ ए एंड सी। तो दोनों ए एंड सी दोनों ही सही है। अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी है आपके एक डिपेंडेंस बिटवीन आपके जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, और पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस इंटर रिलेशनशिप है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना, इकोसिस्टम जो है बोथ आर करेक्ट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ मैप्स फॉर। मैप की नॉलेज किसके लिए जरूरी नहीं है? वेदर मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल जरूरी है, सैटेलाइट नेविगेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है, टू नो अबाउट स्टार्स एंड कैपिटल्स, बिल्कुल स्टेट्स एंड कैपिटल बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, डी ऑप्शन है एक्वायर लाइफ स्किल। लाइफ स्किल अगर आपको कोई एक्वायर करनी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट होगा, इसके लिए मैप नहीं चाहिए। फाइंड द सिनोनिम ऑफ हेरिटेज फ्रॉम द पैसेज। हेरिटेज किसका सिनोनिम है यहाँ पर? हेरिटेज आपकी जो पुश्तैनी कोई आपके पास चीज है, दैट इज कॉल्ड पैट्रिमनी। ऑप्शन आपका डी सही है। प्रोफेसर क्रिस फिशर इज कंसर्न अबाउट। प्रोफेसर क्रिस फिशर जो है उनका वो किस बारे में कंसर्न है? तो कल्चरल पैट्रिमनी के बारे में, इकोलॉजिकल पैट्रिमनी, टू मच डिपेंडेंस ऑन मैप, या फिर ए और बी। तो ए और बी इन दोनों के बारे में वो है, लोग बहुत डिपेंडेंट है मैप पे, ये उनका कंसर्न नहीं है। व्हाट डज फ्लोरा एंड फोना रेफर्स टू? फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब है? प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ब्रॉडर सेंस। जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ब्रॉड सेंस में हम उनको फ्लोरा एंड फोना कह देते हैं। द फिजिकल मैप डज नॉट फोकस ऑन। फिजिकल मैप किस चीज पे फोकस नहीं करता है? रोड, सिटीज, मेजर वाटर फीचर्स, ओके, टू डिटरमाइन द टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए तो जरूरी नहीं है ऑब्वियसली, फिजिकल मैप पे टाइम बताने के लिए फिजिकल मैप का यूज नहीं होता। माउंटेन्स, वैलीज भी होते हैं, टाइपोग्राफी भी होती है, रोड्स, सिटीज और मेजर वेदर वाटर फीचर्स भी वो दिखा देता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ये नहीं होता है। अनदर वर्ड फॉर मैप, मैप के लिए दूसरा वर्ड क्या है? दैट मैप को कहा जाता है कार्टोग्राफ, इसलिए जो पर्सन मैप को रीड करते हैं, बनाते हैं, उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ग्लोब। ग्लोब के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? अलाउ पीपल टू व्यू स्ट्रीट, रोड्स एंड सैटेलाइट इमेज विद इन अ सिंगल इंटरफेस। एक सिंगल इंटरफेस में आपको जो है रोड, स्ट्रीट, सैटेलाइट सब दिख जाएंगे। ग्लोब अगर मैं आपको दूं तो आप उसमें मेजर कंट्रीज ही पहचान पाएंगे, सी पहचान पाएंगे, लेकिन आप उसमें अपनी आसपास की रोड देख ले, स्ट्रीट देख ले, ये नहीं होता है। स्फेरिकल है बिल्कुल। 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन है बिल्कुल है 3D, क्योंकि स्फेयर आपका 3D शेप ही है। रिप्रेजेंट डिस्टेंस, कॉन्टिनेंट, ओशन, डिस्टेंस, कॉन्टिनेंट, ओशंस और कंट्रीज दिखाता है, लेकिन रोड मैप और सैटेलाइट इमेज ये सब वेदर की ये सब वो नहीं दिखाता। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अब लिटरेचर में आते हैं। ये आपकी बुक का एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जो आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं उनमें ये सभी आंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सीन पैसेज है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाए, वो आपको चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिर्फ आपको एक चैप्टर का आइडिया देने के लिए दिया होता है। जैसे कि पहला है आपका एक्सट्रैक्ट, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they are the sons and daughters of life's longing for itself, they come through your but not from you, you may give them your love but not your thoughts for they have their own thoughts। okay, ये कहा है, किसने कहा है वो तो आपको बताया ही जाएगा। यहाँ पर आपके बच्चे हैं लेकिन वो खुद लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया। आप उनको सिर्फ प्यार दीजिए, अपने थॉट्स उन पर थोपिए मत। whose lines have quoted here in the paragraph, इस पैराग्राफ में किनकी लाइन जो है वो कोट की गई है? ये कहा था खलील जिब्रान। ऑप्शन आपका सी सही है। इन द पर्टिकुलर एक्सेप्ट टू होम आर दीज लाइन्स एड्रेस, ये जो बात कही है ये किसको एड्रेस करते हुए कही गई है? ये कही गई आशी अम्मा, जो कलाम की मदर थी, अब्दुल कलाम की, उनको वो कह रहे थे। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। जैसा कि मैंने कहा आपकी बुक में है, ये जरूर आपको ये कहानी पता होगी। इन विच कंटेक्स्ट हैव दीज लाइन्स बीन स्पोकन, ये जो लाइन है ये किस कंटेक्स्ट में जो है कही गई है? तो ये कही गई है व्हेन कलाम्स मदर वॉज रिलेक्टेंट टू पार्ट विद हर सन। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड सही है। वॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट कलाम्स फादर फ्रॉम दीज लाइन्स, कलाम के फादर के बारे में आप क्या ओपिनियन यहाँ से फॉर्म करते हैं? कि वो फिलोसफिकल आउटलुक था उनका, यस ऑफकोर्स फिलोसफी की बात यहाँ पे। प्रैक्टिकल एंड वाइस आउटलुक था, यस प्रैक्टिकल भी बात कही। इमोशनल थे, नहीं बिल्कुल नहीं, मदर इमोशनल थी इनफैक्ट उनकी। प्रोग्रेसिव थे, यस ये प्रोग्रेसिव थॉट्स भी है, यानी कि ए, बी और डी आपके ये 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। माई चाइल्डहुड इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, माई चाइल्डहुड ये जो है ये किसका एक पार्ट है, एक एक्सर्प्ट है। ये जो आपको यहाँ पर दिया गया दैट इज फ्रॉम द बुक विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। थर्ड ऑप्शन सही है। और में एक और पैसेज है आपका,
इसको रीड कर लीजिए। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of all of us. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying a small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Okay, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, हु इज ब्रूनो बीइंग कंपेयर टू, ब्रूनो को यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है, टू अ यंग बॉय, ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट, विच ट्रेट हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू ब्रूनो, ब्रूनो के लिए कौन सा जो है एक ट्रेट एट्रीब्यूट उसका बताया गया है, सो उसको बताया गया स्वीट, प्लेफुल एंड मिस्चीवियस, थोड़ा सा शरारती, प्लेफुल और थोड़ा सा स्वीट। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वाज देयर इन बिटवीन ऑथर्स वाइफ एंड ब्रूनो, ऑथर की वाइफ और ब्रूनो के बीच में कैसा रिलेशन था, अ डीप लव फॉर ईच अदर। नेक्स्ट, वाई डिड ऑथर्स वाइफ चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, ब्रूनो टू बाबा उन्होंने क्यों चेंज किया, तो ये एक एक्ट था उनका ऑफ इंडियरमेंट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिग्निफाइंग, सिग्निफाइंग का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, इंप्लाई करना, यानी कि इंप्लाइंग, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, अगेन ये पोएम से पैसेज होगा और इसमें भी आपके ऑप्शंस होंगे जिसको रीड करके आपको आंसर्स देने हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आर्स द लैंड our brothers walks upon, the earth like this in which we all shall lie. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स मैन स्ट्रेंज एंड कंट्रीज फॉरेन, किस चीज़ से लोग स्ट्रेंज और कंट्रीज हमें फॉरेन लगती है, तो हमारी शॉर्ट साइटेडनेस जो है, जो हम बहुत ही छोटे उससे लोगों को देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म रेफर्स टू, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स का क्या मतलब है, डिफरेंट ड्रेसेस हैं, वेरिड आउटवर्ड अपीयरेंस है, डिफरेंट अटायर्स है, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स का मतलब सभी है कि अलग अलग ड्रेसेस हो भले ही, या फिर बाहर से सभी लोग अलग दिखते हो, डिफरेंट अटायर हो, लेकिन एवरीवन इज सेम। हु आर रेफर्ड एज आर ब्रदर्स इन द स्टैंजा, स्टैंजा में आर ब्रदर्स किन के लिए यूज किया गया, टू पीपल हु लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए। द पोएम टीचेज अस अबाउट, ये जो पोएम है हमें किस चीज़ के बारे में सिखाती है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये हमें बता रही है कि बाकी जो देश के लोग हैं दे आर ऑल्सो लाइक योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन विच वी शैल लाई, किसमें हमें वो रहना चाहिए, वी शुड लाई इन मदर अर्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से आपको एक और पैराग्राफ दिए और में है, आपकी पोएम का ही है। इन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्कॉच्ड एंड चॉक्ड, स्कॉच्ड एंड चॉक्ड का क्या मतलब है, ये पूरी लाइफ ऑफ ट्री के लिए यूज किया गया है वर्ड, सो दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। व्हाट हैपन टू द रूट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, रूट के साथ क्या होता है जब वो बाहर आती है, तो सबसे पहले स्टार्ट्स गेटिंग डिसकलर्ड, थोड़ी डिसकलर्ड होने लगती है, लूज इज टेंडरनेस, उसकी जो टेंडरनेस है वो लूज कर देती है, गेट नैरल्ड एंड विदर्ड, या फिर रॉट एंड स्टिंक, रॉट हो जाती है फिर स्टिंक करने लगती है, इसमें से स्मेल आने लगती है, ऐसा सब नहीं होता। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, ए बी सी इज करेक्ट, ऑप्शन 1 सही है यहाँ पर आपका। एंड देन इट इज डन, व्हाट डज इट रेफर्स टू, इट का क्या मतलब है यहाँ पर, देन इट इज डन, सो इट इज डन दैट मीन्स यू किल्ड द ट्रीज, फाइनल किलिंग द ट्रीज। हु इज रियल एनिमी ऑफ ट्रीज, रियल एनिमी कौन है ट्रीज के, तो ये है आपकी ह्यूमंस, एनिमल्स, मैटरनल थिंग्स या मटीरियल थिंग्स, या फिर स्पिरिचुअलिटी, ऑब्वियसली ह्यूमंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द थीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की थीम क्या है, पोएम की थीम है क्रुएलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये आपका बुक के पैराग्राफ्स हो गए। अब आते हैं ग्रामर पर। ओके, इन द जू एट लुसाका, लुसाका के जू में जाम्बिया, देयर इज अ केज, वहां पर एक केज है जिसके ऊपर एक नोटिस है जो कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो इन विच यहां पर आएगा, इन विच द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, पे लिखा हुआ ये दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। इनसाइड द केज, केज के अंदर क्या है, डैश नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, वहां पर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर लगा दिया गया है, तो देयर इज अ मिरर, ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, जिसमें आप खुद को देखते हैं। थैंक टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर्स ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन अपॉन द मोस्ट डेंजरस दैट इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस स्पीशीज इन द वर्ल्ड, थैंक गॉड कि आपको पता लगा, ही हैज रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन टू वन बेस्ड पार्टनरशिप। ओके, तो ये 3 आपके जो ब्लैंक्स हैं इनमें ये वर्ड्स आपके फिल होंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया, वी डैश गोइंग, वी गो की कौन सी फॉर्म लगेगी, टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ, हम गए थे लास्ट मंथ, तो पास्ट टेंस है तो वेंट आएगा ऑब्वियसली।
राजधानी ट्रेन डैश अ फुली एयर कंडीशन ट्रेन, राजधानी ट्रेन तो है ही फुली कंडीशन, तो इज आएगा यहाँ पर क्योंकि वो आप नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट डैश फूड कोल्ड ड्रिंक वाटर एंड द ब्लैंकेट्स एट नाइट, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रोवाइड, लेकिन इट आ गया थर्ड पर्सन में, ही शी इट या थर्ड पर्सन के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, सो प्रोवाइड्स आएगा यहाँ पर। द जर्नी डैश कूल इट इम्पार्टेड सॉलिसिस टू द सोल एंड माइंड, तो जर्नी जो है वो बहुत कूल रही, तो जर्नी वॉज कूल, क्योंकि अगेन सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिख रहे हैं, पहले की बात बता रहे हैं, सो वॉज कूल, हैव बीन कूल, हैज बीन कूल, ये सब नहीं आएगा। वी ऑल डैश द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी, तो आपने इंजॉय की जर्नी, सो वी ऑल इंजॉयड, कुछ नहीं लगाना, सिंपल पास्ट। राजधानी एक्सप्रेस डैश मेनी इंपॉर्टेंट सिटीज इन आर कंट्री, राजधानी एक्सप्रेस कनेक्ट करती है, टी है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और क्योंकि थर्ड पर्सन टी है, ताहे में क्या आता है, सॉरी एस आता है, तो कनेक्ट्स, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। कन्वर्ट द डायलॉग्स इन इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करना है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन आपको दी हुई है। सो यहाँ पर डॉक्टर पूछता है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, पेशेंट से आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो ये हेडेक बताता है, गो एंड गेट योर आइज चेक, जाओ और अपनी आइज को चेक करा के आओ। सो द डॉक्टर आस्क्ड, अब आपको ये जो कन्वर्सेशन है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो डॉक्टर पेशेंट से पूछता है व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज, कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है ये। द पेशेंट टोल्ड दैट, पेशेंट कहता है दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, ओके। द डॉक्टर सजेस्टेड, फिर डॉक्टर सजेस्ट करता है द पेशेंट को टू गो एंड गेट हिज आईज चेक्ड, सिंपल, जाओ और उसकी आंखों को वो चेक कराने के लिए सजेस्ट करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, अच्छा ओके सॉरी, ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखे नहीं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन सही है, व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज। सेकंड, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो इसमें सेकंड बी आएगा। और थर्ड वाला टू गो एंड गेट हिज आइज चेक, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब राइटिंग सेक्शन पर आते हैं। दिस ट्रेट ऑफ अ म्यूजिशियंस आर गिवन इन द बॉक्स ओवरलीफ, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज अबाउट हिम, यहाँ पर आपको ए आर रहमान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। इंडियन कंपोजर है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिशियन है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, बॉर्न यहाँ पर हुए हैं, ग्रेजुएट यहाँ से हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किस चीज़ के लिए फेमस थे पहले, ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट करते थे, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, मतलब काफ़ी सारे इनके बारे में दिया, बट पॉइंट्स में दिया हुआ, आपको डिटेल में इनको लिखना है, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव, उसमें 100 to 120 वर्ड्स। मेरी कितने मार्क का क्वेश्चन है, ये है 10 मार्क्स का। सो इन पॉइंट्स को लेके आप इनके बारे में एक पैराग्राफ बना देंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इनके बारे में आपको पता हो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 100 उसका वर्ड्स का आप बना सकते हैं। दैट ए आर रहमान इज एन ऑस्कर, पद्म भूषण एंड ग्रैमी अवार्ड विनर, इंडियन फिल्म कंपोजर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन एंड सिंगर। हिज जीनियस with his exceptional talent has reached heights of success that people of his age can only dream of, and all these things थोड़ा सा करके। नेक्स्ट है आपका, कृष्णा went to visit a blind school as a part of his school service moral educational class, इसके बारे में वो एक ब्लाइंड स्कूल में गए। he or she was so touched by the experience that he or she decided to share her feeling in the diary। डायरी राइटिंग आपको यहाँ पर करनी है इस बारे में। सबसे पहले तो जब आप डायरी लिखते हैं सबसे ऊपर आएगा आपका डेट, कि किस दिन आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 22 फरवरी 2021, और यहाँ पर आप टाइम जरूर लिखते हैं जिस टाइम आपने लिखना शुरू किया, मान लीजिए आप 10 PM रात को 10 बजे बैठकर लिख रहे हैं। डियर डायरी, टुडे आई वेंट टू विजिट अ ब्लाइंड स्कूल एज अ पार्ट ऑफ माई सोशल सर्विस एंड मोरल एजुकेशन। क्वेश्चन से उठा लीजिए वर्ड्स। आई वॉज रियली टच टू सी द चिल्ड्रन एज दे वर रियली हैप्पी इवन विद द आइज, इन विदाउट द आइज, आंखों के बिना भी वो बहुत खुश थे। देन आई थॉट अबाउट आवर सेल्फ, फिर मैं खुद के बारे में सोचता हूँ। दैट हैविंग एवरी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, जो कि जिनको गॉड ने सभी ब्लेसिंग दी, एंड वी आर नॉट हैप्पी, फिर भी हम खुश नहीं हैं। वी शुड बी थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग वी हैव एंड लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एवरीथिंग दे आस्क फॉर। तो हमें गॉड को के लिए थैंकफुल होना चाहिए उनकी ब्लेसिंग के लिए कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। दे वर रियली होपफुल अबाउट लाइफ एंड देयर फ्यूचर। आई लर्न अ लॉट of them from them होना चाहिए, and I think I will be having gratitude for everything happening around me
इन द नियर फ्यूचर आई एम ग्लैड आई वेंट देयर एंड मेट दीज अमेजिंग किड्स, नाउ आई विल लिव माई लाइफ डिफरेंटली। ओके, आप पे क्या असर हुआ उस इवेंट का, थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे, वहाँ पे आपने क्या देखा थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे, दैट्स ऑल। ये आपकी डायरी एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है इसके बारे में, ये कुछ वर्ड्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी, ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन स्टोरी कंप्लीशन का जरूर आता है 9th क्लास में, आपको कुछ स्टार्टिंग का 1-2 लाइंस दे देंगे, फिर आगे आप जैसा भी लिखना चाहे। रवि इज एक्साइटेड एज इज गोइंग टू हिज फेवरेट प्लेस दार्जिलिंग, रवि बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो दार्जिलिंग जा रहा है। इट इज हिज लाइफ टाइम विश टू बी देयर, उसकी लाइफ टाइम विश थी कि वो वहां पर जाए। बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही ensured that he hasn't forgotten anything necessary required in the journey, वो इंश्योर करता है कि कोई चीज़ वो भूला ना हो। he gets into the train, settle in the seat and finds, सीट पर सेटल होता है और उसके बाद क्या होगा वो आपको खुद लिखना है। तो ये एक टेंटेटिव सा आंसर मैंने बना दिया है, अगर आप उसकी हेल्प लेना चाहें। ये देखिए स्टोरी आपको वैसे ही शुरू करनी है जैसे यहाँ पे दी हुई है, लाइफ टाइम विश है, वो इंश्योर करता है कुछ भूले ना। उसके बाद वो बैठता है, लुक अराउंड टू सी इफ देयर इज एनीथिंग ईटिंग काउंटर, कोई ईटिंग काउंटर है नहीं क्योंकि ट्रेन जब वो पूरी रात चलने वाली है और उसने कुछ खरीदा नहीं था जिसकी वो खा सकी। ही हैज गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, बॉट सम ईटेबल्स एंड जूस बॉटल्स इन केस ही फेल्ट थर्स्टी। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पॉज करके आप प्लीज खुद पढ़ लेना, बिकॉज मैं रीड करूंगी तो ऑलरेडी 29 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, बहुत लेंदी हो जाएगा ये आपके लिए। ये मैंने आंसर आपको दिखा दिया एक बार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट फिर से यही है, यू हैव अ पेट पैरट इन अ केज, आपके केज में एक पेट था आपका पैरट। वन डे यू डिसाइडेड टू सेट इट फ्री, आपने उसको फ्री करना चाहा, उसके बाद क्या हुआ वो आप यहाँ पर कंप्लीट उसमें लिखेंगे। वो चला गया, हो सकता है फिर से वापस आ गया, जैसे भी आप कहानी बनाना चाहे दैट इज अप टू यू। उसके बाद लिटरेचर में आते हैं, ये आपकी बुक्स के क्वेश्चंस हैं, बट जैसा कि मैंने कहा आंसर मैं आपको सभी के एक बार दिखा देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रूव्ड दैट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट, किससे पता लगा कि उनकी जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की वो एक्यूरेट थी। तो ये देखिए ये इसका आंसर होगा, जूम करके आपको दिखा देते हैं, इसको प्लीज खुद रीड कर लीजिए एक बार। आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश इन 1915 प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 प्रूव दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ओके what do the road in the passage the road taken symbolize, road taken में जो रोड बताई गई है ऑथर ने जो बताई है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम लिखी है, नरेटेड बाय अ लोन ट्रैवलर कन्फ्रंटेड विद टू रोड सिंबलाइज द जर्नी ऑफ लाइफ एंड द डिसीजन वी मेड ऑन दैट जर्नी, जो डिसीजंस आपको लाइफ में लेने पड़ते हैं वो रिप्रेजेंट करती है वो रोड्स। नेक्स्ट है व्हाट हेल्प मारिया शारापोवा रीच द टॉप, किस चीज ने हेल्प की मारिया शारापोवा के टॉप पर रीच करने में। मारिया's टैलेंट, हर unweaving determination, her hunger for success, her willingness to work hard, her readiness to endure challenges and her sacrifices have lifted her to the top of the world. Okay, next question. नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, तीनों एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों के आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज बुक के क्वेश्चन है, इनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक की जरूरत होगी, बट स्टिल एक बार आंसर्स क्या है वो आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स के ही थे, उसके बाद ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू राइट अबाउट एनी 3 ऑफ देम। 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये, 4 मार्क सॉरी 11th, और ये इनके आंसर्स हैं आपके। फर्स्ट, ये केंद्रीय विद्यालय का मैं आपको दिखा रही हूं, जो केवीएस के टीचर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट, ओके दिस इज डन। उसके बाद ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको और में 2 ये दिए हुए, इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस देख लिए, अभी आंसर्स देख लेते हैं, ये रहे आंसर्स। पॉज कर दीजिए, खुद रीड कर लीजिए आंसर्स एक बार। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली थोड़ी सी हेल्प आपकी हो गई हो, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ से कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा पैटर्न का आइडिया हो गया होगा।
सो अभी आप सब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं अभी आपके एग्जाम में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.